Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sandeep Chauhan. Today I will start a new topic, time series. It is in standard 12th commerce, FI BCom, FI, BMS, etc. और भी स्ट्रीम में ये अवेलेबल है. I have divided time series chapter in 3 parts. First part is definition of time series and its component. Second part, moving average method, and third, least square method. Right? Now we are starting first part. So I am starting definition of time series. A time series is series of well-defined data recorded or stored in repeated movement over time. Also, we can say that when quantitative data is arranged in order of their occurrences or historical order, then the resulting statistical series is known as time series. Suppose आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट किया है 2000 में और करंट तक आपका बिजनेस क्या है, रन हो रहा है, राइट? आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2000 में एंड अभी तक आपका बिज़नेस लाइव है. तो आपको अगर चेक करना है कि लाइक 2000, ईयर 2000, 2001, 2002 में आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, कितने प्रोडक्ट सेल हुए थे, कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, राइट? तो हम क्या करेंगे, जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो भी टाइम डेटा स्टोर हुआ है टाइमली मैनर, उनका यूज़ करके हम अपना जो करंट जो डेटा है उसको इन्हेंस कर सकते हैं. Right? The duration of time series is shorter than 1 year, equals to 1 year, or greater than 1 year. Right? There are lots of example where time series is used, basically to find out sales of shop for different day of week, also production of company during the different month of year, profit of company for different years, etc. तो इन सब चीज़ों में टाइम सीरीज़ का यूज़ होता है. Proceeding to next topic, component of time series. So basically increase, decrease, or we can say that the variation in time series is known as component of time series. So there are mainly 4 component of time series. Very first component of time series is secular trend. So basically secular trend, it has tendency to increase, decrease, or remain constant. The best example of secular trend is increasing demand of mobile phone, TV, etc. Next type of component of time series is seasonal variation. In this variation, the changes are depend on according to season. Best example है जैसे कि रेनी सीजन है, तो उस टाइम जो चेंजेस वेरिएशंस होते हैं, डिमांड जो होता है अम्ब्रेला का ज़्यादा होता है. जैसे समर सीज़न होता है तो उस टाइम जो डिमांड, मतलब जो चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा होते हैं, राइट? जो भी वेरिएशन सीज़न के अकॉर्डिंग होता है, वैसे वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं सीजनल वेरिएशन. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज साइक्लिक वेरिएशन. इन दिस टाइप ऑफ वेरिएशन द वेरिएशन अकर ओवर अ पीरियड विच इज़ मोर देन अ ईयर. इट इज़ ऑल्सो रिकरिंग एंड पीरियडिक इन नेचर. तो इसका जो एग्जांपल है, तो बेसिकली जो भी बिजनेस साइकिल में जो चेंजेस होते हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, अप, डाउन, प्रॉफिट, लॉस, राइट? नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इरेगुलर वेरिएशन. इरेगुलर वेरिएशन डज नॉट डिपेंड इन एनी अदर फैक्टर. फॉर एग्जांपल सुनामी, अर्थक्वेक का आना, एक्सेट्रा, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, राइट? तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन. नाउ वी आर स्टार्टिंग मूविंग एवरेज मेथड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज मेथड, 3 ईयरली, 5 ईयरली एंड 4 ईयरली. 3 ईयरली एंड 5 ईयरली इज नोन एज ऑड मूविंग एवरेज मेथड. 4 ईयरली इज इवन मूविंग एवरेज मेथड. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट odd moving average method, which is 3 yearly and 5 yearly. Afterward we will start 4 yearly moving average method. So we are starting moving average method. Very first we are starting 3 yearly moving average method. Okay, question number 1, find the trends for the following data by calculating 3 yearly moving averages. Also plot the given data and moving averages on graph paper. सो यहाँ पे ईयर एंड प्रोडक्शंस दिया है, राइट? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 कॉलम क्रिएट करना है,
हाउ मेनी कॉलम्स 4। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम होगा हमारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में हमने लिखा है ईयर एंड प्रोडक्शंस वही कॉलम होगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड कॉलम हो जाएगा हमारा 3 ईयरली मूविंग टोटल, और बोल सकते हैं हम लोग 3 ईयरली टोटल। एंड फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मीन्स टोटल डिवाइड बाय 3, राइट। तो ईयर स्टार्ट हुआ है 1999, तो हमें क्या करना है ईयर में भी सेम जो भी ईयर दिया है सेम कॉपी पेस्ट करो। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम क्या होगा, जो हमने ईयर और प्रोडक्शन है क्वेश्चन में दिया है सेम का सेम कॉपी पेस्ट करना है, राइट। तो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1999, तो लिखा वो, देन उसके बाद में 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5 एंड लास्ट होगा हमारा 2006। सेकेंड कॉलम प्रोडक्शन, तो जो भी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में प्रोडक्शन का सेम हमें क्या करना है कॉपी पेस्ट करना है। तो पहला वैल्यू है 1999 के लिए 46, देन 53, 72, 57, 62, 78, 60 एंड 85, राइट। थर्ड कॉलम इज़ 3 ईयरली टोटल। सो 3 ईयरली टोटल में हमें क्या करना होता है, 3 डेटा को ऐड करके जो मिडल में आता है वो डेटा के हमें सामने लिखना होता है, राइट। तो अगर मैं कंसीडर करूँ 46, तो 46 मिडल में आना चाहिए, तो उसके लिए एक डेटा ऊपर होना चाहिए और एक डेटा बॉटम साइड होना चाहिए। बट 46 के ऊपर एक डेटा नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है वहाँ डैश करना है। एज इट इज़ लास्ट में है 2006 के लिए 85, तो अगर 85 मिडल में आना है तो उसके लिए एक ऊपर डेटा होना चाहिए और एक बॉटम साइड। तो ऊपर डेटा है 85 के 60, लेकिन उसके बॉटम साइड डेटा नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या करना है हमें डैश करना है। अंडरस्टूड। तो इसलिए क्या होगा, जो सबसे पहला जो टोटल है हमारा 46, 53, 72, तो ऐड करने पे 171 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 46, 53, 72, तो मिडल में आ रहा है 53, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 53 के सामने लिखेंगे। नेक्स्ट 53, 72, 57, ये तीनों डेटा को ऐड करने पे 182 आ रहा है। तो 53, 72, 57 मिडल में 72 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 182 72 के सामने लिखेंगे। नेक्स्ट 72, 57, 62, तो तीनों को ऐड करने पे 191 आ रहा है, मिडल में डेटा 57 आ रहा है, इसलिए हम 57 के सामने लिखेंगे। उसके बाद का जो डेटा है वो है 57, 62, 78, तो तीनों को ऐड करने पे 197 आ रहा है। तो 57, 62, 78 मिडल में आ रहा है 62, इसलिए हम लोग 197 62 के सामने लिखेंगे। नेक्स्ट 62, 78, 60, तो मिडल में आ रहा है 78 और डेटा ऐड करने पे आ रहा है 200। एंड लास्ट जो है हमारा वो है 78, 60, 85, तो जब तीनों डेटा को हम ऐड करेंगे तो 223 आ रहा है और मिडल में डेटा आ रहा है 60, तो हम 60 के सामने लिखेंगे 223, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं, जो है हमारा 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, राइट। तो यहाँ पे लिखा है टोटल डिवाइड बाय 3, तो जो भी आपने टोटल यहाँ पे फाइंड आउट किया है डिवाइड बाय 3 करना है, राइट। तो फर्स्ट जो रो है वहाँ पे आपको डैश करना है, बिकॉज 3 ईयरली टोटल हमें नहीं मिला है। तो फर्स्ट एंड लास्ट जो रो है वो क्या करना है आपको डैश करना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको 3 ईयरली टोटल मिला है डिवाइड बाय 3। फर्स्ट टोटल है 171, डिवाइड बाय 3 करने पे आंसर आएगा 57। देन 182 डिवाइड बाय 3 60.66, 191 डिवाइड बाय 3 63.66, देन 197 डिवाइड बाय 3 65.55, 200 डिवाइड बाय 3 66.66 एंड लास्ट है 223 डिवाइड बाय 3, आंसर आएगा 74.33। तो ऐसे हमें कंप्लीट करना है मूविंग एवरेज मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन 3 ईयरली। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड आया, तो हमें 4 कॉलम बना के और ऐसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में और चीज़ बोला है कि आपको क्या प्लॉट करना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है, राइट। फॉर ग्राफ एक सिंगल ही ग्राफ पेपर में हमें क्या करना है 2 लाइन प्लॉट करना है। तो पहला जो लाइन होगा वो हमारा क्या होगा ओरिजिनल डेटा, ईयर एंड प्रोडक्शन जो क्वेश्चन में दिया है, और दूसरा जो लाइन रहेगा वो क्या होगा ईयर एंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज, राइट। तो हमें क्या करना है ईयर सेम ही लेना है,
एक्स एक्सिस पे हमें ईयर लेना है एंड वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है 1999, 46। तो एक्स एक्सिस पे हमें 1999 लेना है एंड वाई एक्सिस का 46, तो वो पॉइंट लाइज करेगा यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट है वो है 2000, 53। तो x का 2000 एंड y का 53, वो पॉइंट लाइज करेगा यहाँ पे। थर्ड जो पॉइंट है वो है 2001, 72। x का 2001 एंड y का 72 यहाँ पे लाइज कर रहा है। तो ऐसे आपको रिपीट करना है 2006, 85, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। तो x का आपको 2006 लेना है एंड y का 85। पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को स्केल से जॉइन करना है। नेक्स्ट लाइन होगा मूविंग एवरेज का। तो उसके लिए जो पॉइंट्स होंगे वो x का पॉइंट सेम ही होने वाला है ईयर, लेकिन y का जो होगा वो होगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा 1999, कॉमा डैश, मतलब 1999 में कोई भी मूविंग एवरेज नहीं था, तो हमें वहाँ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट होगा 2000, 57। तो 2000, 57 यहाँ पे लाइज करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 2001, 60.67। तो 60.67 को आप 61 भी अज्यूम कर सकते हो। तो जो हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा 2001, 61, और वो लाइज यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2002, 63.67। तो 63.67 को हम 64 भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा 2002, 64, और वो यहाँ पे लाइज करेगा। तो ऐसे ही आप क्या करो, हर एक पॉइंट को प्लॉट करो। तो हमारा जो लास्ट है वो है 2005, 74.33। तो 74.33 को हम 74.5 भी कर सकते हैं, और वो लाइज यहाँ पे करेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करना है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। पॉइंट प्लॉट होने के बाद आप क्या करोगे, स्केल से हर एक पॉइंट को ज्वाइन करो, और वो हो जाएगा मूविंग एवरेज मेथड का लाइन। We are starting 5 yearly moving average method. Question number 2, calculate 5 yearly moving averages for the following time series. Also plot the given data and moving averages on graph paper. Same question, year in productions. So basically we have to make 4 columns. First column is question like years. Second column is also question प्रोडक्शंस लाइक। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम हमारा क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया है, ईयर एंड प्रोडक्शन। थर्ड कॉलम बेसिकली वी हैव टू मेक 5 ईयरली टोटल, एंड फोर्थ कॉलम 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। तो फॉर्मूला है टोटल डिवाइड बाय 3। तो जो भी हमने टोटल फाइंड आउट किया है थर्ड कॉलम में, आपको डिवाइड बाय 5 करना है। तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे जो भी क्वेश्चन दिया है। तो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1997, तो वो लिखना है आपको, और वो रिपीट मतलब कंप्लीट करना है आपको 2006 तक। ओके, 1997, 1998 ऐसे करके 2006 तक। प्रोडक्शंस स्टार्ट हो रहा है 243 से, तो 243, 251 ऐसे आपको पूरा रिपीट करना जो क्वेश्चन में दिया है 260 तक, राइट। अब थर्ड कॉलम पे आ जाते हैं। थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट, वो जो रो है उसमें वहाँ पे आपको डैश करना है। ऐसा क्यों, बिकॉज हम 5 डेटा को ऐड करेंगे, और जो मिडल में आता है वो हम क्या करेंगे, उसके सामने जो ऐड करने पे आंसर आ रहा है वो लिखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर 2 डेटा होना चाहिए और 2 डेटा बॉटम साइड होना चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट में 2 ऊपर डेटा नहीं है, 247 के ऊपर डेटा नहीं है, इसलिए वहाँ पे डैश करना है। सेम 251 उसके ऊपर 2 डेटा चाहिए बट हमारे पास नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या करना है, डैश करना है। हाँ, 254 पे अगर आप आ जाओ, देखो 2 डेटा ऊपर है और 254 के 2 डेटा बॉटम साइड में भी है। तो जब हम 5 डेटा को ऐड करेंगे तो मिडल में आएगा 254। जैसे एग्जांपल 243, 251, 254, 256, 256, राइट। तो 5 डेटा हो गया, और पाँचों को जब हम ऐड करेंगे तो एक आंसर मिलेगा, और वो आंसर हमें क्या लिखना है, 254 के सामने लिखना है, राइट। तो आंसर कितना आ रहा है ऐड करने पे, 1260। तो जब हम 5 डेटा को ऐड करेंगे और मिडल में आ रहा है 254, उसके सामने आपको लिखना है 1260। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, 251, 254, 256,
256 और क्या करना है आपको, पांचों डेटा को ऐड करना है और मिडल में आ रहा है 256 फर्स्ट वाला, वहाँ पे आपको क्या करना है उसके सामने लिखना है। तो कितना आ रहा है 1262, राइट। नेक्स्ट 254, 256, 256, 244 एंड लास्ट में 250। तो ये 5 डेटा जब आप ऐड करोगे, राइट, तो मिडल में कौन सा आ रहा है 256 आ रहा है, तो आपको क्या करना है 256 के सामने लिखना है, राइट। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है 1261। ओके, सेम आपको फिर से रिपीट करना है, रिपीट नहीं मतलब नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट डेटा जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1261। उसके बाद फिर से करोगे तो 250 के सामने आपको मिलेगा 1263, ओके, और लास्ट में 254 के सामने मिलेगा 1267। तो 5 डेटा आपको ऐड करना है और जो मिडल में आ रहा है उसके सामने आपको क्या करना है, ऐड करने पे जितना आंसर आ रहा है वो आपको लिखना है, राइट। फोर्थ कॉलम विच इज़ 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस, टोटल डिवाइड बाय 5। तो फर्स्ट सेकेंड रो आपको यहाँ पे भी सेम ब्लैंक रखना है एंड लास्ट सेकेंड लास्ट जो रो है वो भी रखना है, बिकॉज टोटल वहाँ पे नहीं मिला है, बिकॉज 5 डेटा ऐड करके वहाँ पे हम नहीं लिख सकते, मिडल में डेटा नहीं आता इसके लिए। ओके, तो पहला जो टोटल है वो स्टार्ट होगा 1999, कितना है 1260, आपको क्या करना है डिवाइड बाय 5 करना है। तो 1260 डिवाइड बाय 5, तो हमें आंसर मिलेगा 252 एज इट इज़। 1262 डिवाइड बाय 5 करने पे आंसर आएगा 252.4। नेक्स्ट है टोटल 1261 डिवाइड बाय 5 किया तो आंसर आता है 252.2, राइट। नेक्स्ट है 1 सेम आएगा क्योंकि टोटल सेम ही है। देन 1263 डिवाइड बाय 5, आंसर इज़ 252.6 एंड लास्ट है 1267 डिवाइड बाय 5, सो आंसर मिलेगा 253.6। तो 5 ईयरली डेटा, 5 ईयरली मूविंग एवरेज ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको 4 कॉलम बनाना है, फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकेंड प्रोडक्शन, थर्ड 5 ईयरली टोटल एंड फोर्थ होगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज, राइट। तो 5 ईयरली में आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड रो होता है वो डैश होगा एंड लास्ट सेकेंड लास्ट रो क्या होगा डैश होगा, क्योंकि वो डेटा प्रोडक्शन का वो डेटा मिडल में नहीं आता है। सो वी हैव टू प्लॉट 2 lines in a single graph paper. For that, take year and production as original data and year 5 yearly moving average as moving averages. तो जैसे हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज में ग्राफ प्लॉट किया था, एक ही ग्राफ में हमने 2 लाइन प्लॉट किया था, एक ओरिजिनल डेटा था और दूसरा क्या था मूविंग एवरेज मेथड। तो सेम मेथड से हमें 5 ईयरली में भी क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है, खाली वहाँ पे x और y का वैल्यू चेंजेस होगा, मेथड वही है। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज में जो ग्राफ प्लॉट करना है वो प्लॉट करने के लिए आप 3 ईयरली मूविंग एवरेज का ग्राफ रिफ़र कर सकते हो, ओके। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड स्टार्ट करेंगे।